I spent almost 5,000 hours running an agency. This video, I will share what I've learned so far. So this video is not going to be teaching you about how you can make money online or how you can start your agency or freelancing journey. उस पे काफ़ी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, इनफैक्ट फ्री डिटेल्ड कोर्स अपलोड कर रखे हैं, यू कैन चेक दैट आउट लेटर. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर टुवर्ड्स बिग माइंडसेट चेंज जो कि मेरा अब तक हुआ एज अ एजेंसी ओनर and with the network of top agency owners from all over the world now and how things actually work on a large scale with large companies. Overall, मेरा and बाकी कुछ agency owners का experience जो कि I will share in this video. So if you are interested in this, make sure to watch till end because पांचों points important हैं. So let's start with the first one, that is personal brand. Right now, it's important for everyone, and by everyone, I literally mean each and everyone. Whether you want to get hired in a startup, whether you want to get a job, whether you want to get admission in a top class college, or whether you want to build something of your own, a personal brand can help you in all of these sectors. In fact, it can also help you in your personal life, that is dating, friendship, blah blah blah. Most people think that I don't have a personal brand or I don't even need a personal brand, right? But the thing is, your 300 or 400 followers that you have on Instagram or LinkedIn is your personal brand. Your profile is your personal brand. The people you follow is your personal brand. The photos and videos you are uploading is your personal brand. And trust me, everybody checks that, whether it's your employees, employer, clients, crush, friends, etc., etc. And they all will treat you accordingly from your personal brand. And everything I'm talking about here is not just my experience. It's the same from the top agency owners from all over the world, from all over India. So now let's move on to the second learning, that is invest on yourself. And no, I'm not talking about buying courses or enrolling in programs. That is something that you can do to upskill yourself. But other than that, invest in yourself. Invest in people around you. Spend more on good clothes, fitness, and team. And by clothes, I don't mean buy fancy. I mean buy good fitted clothes that suits your personality, not those first copies and fake brands. The more you spend on your team, the more you will get back in return in long term. Invest in experience that will make you a fun, knowledgeable, and a better person in overall personality. Spend more on your overall environment. Be with the right people. Move out from your house if that's make you unproductive. And trust me, जितना जल्दी इसकी वैल्यू तुम समझोगे ना, उतना जल्दी फायदा होगा, बिकॉज मैंने इसकी वैल्यू शायद बहुत लेट जाके समझी थी. सो द थर्ड लर्निंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस इज बेसिकली स्टेइंग अडेप्टेबल टू चेंज. सो द थिंग इज कि मेरे को बहुत नुकसान करवा के एंड धक्के खा के समझ आया था कि दैट यू हैव टू बी अडेप्टेबल टू चेंज इन लॉन्ग टर्म. बहुत सी चीज़ों को टाइम के साथ बदलना पड़ता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें टाइम के साथ ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एवरीथिंग. अब चाहे तुम इसको बिजनेस साइड से ले लो, दैट इज पार्टनर्स, टीम, एसओपीज, एड्स, कंटेंट क्रिएशन, हर एक चीज को टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है टू बी प्रोडक्टिव, टू बी प्रॉफिटेबल, राइट. अब चाहे तुम इसको अपनी पर्सनल साइड पे ले लो, दैट इज फ्रेंड्स यू मेक, पीपल यू नो, एक्सपेक्टेशंस यू हैव और योर ओन गोल्स और ड्रीम्स, that can be changed also in long term. So as a business owner or as a normal person, you have to be adaptable to change, वरना in long term आपको ये नुकसान ही करवाएगा. एंड सीखना आपको तब भी पड़ेगा कि कैसे टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है. बाकी आप लोग खुद समझदार हो. So the fourth and the fifth learning that I want to share with you guys is basically about freelancing and agency part only. So the fourth point is managing a good satisfactory relationship with your clients in long term if they treat you the same as well. The thing is, सबसे पावरफुल वे क्लाइंट लाने का ना आउटबाउंड है ना इनबाउंड, इट्स रेफरल्स. एंड वो तभी पॉसिबल है जब आपके सारे क्लाइंट्स का आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू एंड दे बेसिकली ट्रस्ट यू. इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस से मेरे साथ वो क्लाइंट्स ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन हुए हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरे साथ रहा, उन्होंने काम करा है, जिनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था एंड उनकी सर्विसेज भी अच्छी थी. बट ऑन द अदर हैंड मेरे वो क्लाइंट्स ज़्यादा जल्दी छोड़ के गए हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत एक्सेप्शनली अच्छे थे. मतलब अगर वो रिजल्ट्स मैं किसी को भी दूं तो वो डेफिनेटली मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा. बट ऑन अदर हैंड उनके साथ मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे, या फिर मेरी टीम को उनसे डायरेक्टली पर्सनल कनेक्शन नहीं था, तो फॉर द लॉन्ग टर्म वो हमारे साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज
कोई भी बंदा इतना प्रोफेशनल है कि तुमसे इतने महीने साल तक काम नहीं कर सकता. You have to be good with each other on every terms. So focus more on clients relationship management. बड़ी बड़ी कंपनीज तो उसके लिए प्रॉपर एक टीम, प्रॉपर HR मैनेज करके रखती हैं, जहाँ की सिर्फ उनका काम सिर्फ यही होता है कि टू मैनेज अ गुड सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स. इनफैक्ट हमने भी इसके लिए एक रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़की हायर करी थी जिसका काम सिर्फ यही है, टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट्स. नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट लर्निंग दैट आई वांट टू शेयर, एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल वन आल्सो, इज बी अवेयर ऑफ फेक gurus. Now, what do I mean by fake gurus? Someone who says basically agency and freelancing space बहुत आसान है, anybody can succeed in that, or you just have to work 3 to 4 hours a day and you will be a millionaire in 1 to 2 years. भाई ऐसा कुछ नहीं होता है. या आपने कभी पहले किसी क्लाइंट का कभी काम नहीं किया and they're saying you that go and start an agency. ऐसा कभी नहीं होगा भाई. आप कभी भी एक रैंडमली दिन उठ के नहीं बोलोगे यू हैव टू स्टार्ट एन एजेंसी. यू कैन ओनली बिल्ड एन एजेंसी वाइल फ्रीलांसिंग. बिकॉज जब आप फ्रीलांस कर रहे होते हो आपके पास 2 से 4, 4 से 6 क्लाइंट होते हैं, एंड देन आप सोचते हो कि मैं एक बंदा अपने अंदर और रख लूँ जो कि मेरे को काम करा के दे, मेरी हेल्प करे, बिकॉज इतने क्लाइंट्स में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ. एंड इस तरह के से आप एजेंसी बिल्ड करते हो, बिकॉज 6 से 12 या फिर हाई टेड क्लाइंट में आप काम करते हो, फिर 2 से 3, 4 से 10, 10 से 15 लोग आप काम करते हो आपके अंदर. तो दैट इज़ द वे टू बिल्ड एन एजेंसी बाय फ्रीलांसिंग. नॉट एक रैंडम पे जाके आप ऑफिस ले लोगे, बड़ा सा एड्स ला दोगे, सब कुछ कम ऑटोमेटिक कर लोगे, मतलब अच्छे से करोगे, बट स्टिल आपके पास मार्केट में क्लाइंट्स कहाँ हैं, आपके पास मार्केट में रेपुटेशन कहाँ है, आपके पास जानता कौन है, आपके पास केस टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है. आपको समझना पड़ेगा कि हर सक्सेसफुल एजेंसी ओनर पहले लंबे टाइम तक एक अच्छा फ्रीलांसर रह चुका होता है ऑलरेडी. एंड वन थिंग दैट आई कैन टेल यू फॉर श्योर, that this agency and freelancing space is not easy. Go in only if you have soft skills and hard skills with a creative mind. And if you are going in, go in properly without taking any step back. Because mostly लोग क्या करते हैं, एजेंसी खोलते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीने बंद कर देते हैं. इंडिया में ना अभी ऑन एन एवरेज जिस हिसाब से मैं देखता हूँ हर जगह पे, हर दूसरे तीसरे दिन एक एजेंसी खुलती है. इनफैक्ट हर दिन एक काफ़ी एजेंसीज खुलती हैं, एंड हर तीसरे दिन दूसरे दिन काफ़ी एजेंसीज बंद होती हैं. ऑन एन एवरेज इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी जर्नी का जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं ना, उनका एवरेज टाइम पीरियड 3 से 6 महीने है काम करने का, उसके बाद वो बंद कर देते हैं. तो योर कॉम्पिटिशन इज दोज नॉट 95% लोग जिनके 5 से 6 महीने 1 साल तक एजेंसीज आने वाले हैं. योर कॉम्पिटिशन इज दोज 5% एजेंसीज. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो 5% एजेंसी सबके साथ काम कर भी नहीं सकती हैं. एंड जो 5% एजेंसी काम कर रही है ना, वो सिर्फ टॉप या फिर अपने हाई टेड सब काम करना चाहेंगी ताकि वो रिजल्ट्स भी दे पाएँ. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट में ट्रेंड्स की कमी होगी. इट्स जस्ट कि आपको एक अच्छा क्लाइंट ढूंढने के लिए आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए. सो दिस इज़ द वीडियो. इफ़ यू वांट मोर रॉ वीडियोज़ लाइक दिस in which I talk about agency and freelancing journey, my experience, my journey, my struggles, my success. So do let me know in the comment section, and of course I will make these raw videos also, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है ऐसे raw videos create करने में, to generalize myself, and मेरे को आगे भी values भी पॉइंट मिलती है, because आप लोगों को इन raw videos में ज़्यादा value मिलेगी as compared to the highly edited, high-heel edited scripted videos में, because वहाँ पे शायद बहुत पॉइंट मिस हो सकते हैं जो कि बंदा रैंडमली किसी से पर्सनली स्टेप बाय स्टेप बात करते वक्त बोल देता है, वो हम स्क्रिप्टिंग में या फिर हाईली एडिटेड वीडियोस में नहीं दिखा सकते हैं. जो बिल्कुल रॉ रहता है ना, उसमें आई टॉक विद समवन कैसे कि मेरे सामने वही बंदा बैठा है जो तो मेरे से बात कर रहा है, फिर वही क्वेश्चंस पूछ रहा है, बट है सामने एक कैमरा, राइट. तो विदाउट एनी फिल्टर्स हम ऐसे रॉ वीडियोस क्रिएट करते रहेंगे. एंड हाँ, मैं ऐसा भी सोच रहा था कि मैं हर हफ्ते या 10 दिन में एक यूट्यूब लाइव रखता हूँ 1 से 2 घंटे का, लाइक हर हफ्ते 10 दिन में. तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या मुझे रखना चाहिए, एंड अगर रखूँ तो कब रखूँ, एंड किस ऐसे रॉ वीडियोस पे अगला क्या टॉपिक होना चाहिए. डू लेट मी नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन कमेंट सेक्शन. बाय बाय. आर्यन कपूर साइनिंग ऑफ.